نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی۔ اس نے جواباً لاپرواہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا بتاتا یار، مجھے اپنی بیماری سے زیادہ تمہاری بیماری کا دکھ ہے۔ میں 70 کا ہو چکا ہوں، کوئی بیماری ہو نہ ہو کتنا جیوں گا میں، اور اس عمر میں الزائمر کے بغیر بھی کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو۔ وہ اپنی بیماری کے معمول کو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور اب وہی بیماری اس کے سامنے اس کے باپ کی یادداشت کو گھن کی طرح کھانے لگی تھی۔ زندگی عجیب شے ہے، انسان اس کی طویل ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کی طوالت کے اثرات سے ڈرتا بھی ہے۔ سکندر عثمان ابھی تک سیل فون ڈھونڈنے جا رہے تھے۔ صلاح نے فون اٹھا کر اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ اچھا ہاں یہ رہا۔ انہوں نے فون ہاتھ میں لیا، پھر سوچنے لگے تھے، کس لیے لیا تھا یہ فون، کس لیے دیا ہے تم نے؟ میں نے مانگا تھا کیا؟ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی چیز سلار کے حلق میں گولا بن کر پھنسی۔ نہیں، میں بس دینا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گیا۔ وہ باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو کیا، اور نہیں بیٹھو گے؟ وہ جیسے مایوس ہوئے تھے۔ بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ ان سے نظریں چراتا بھرائی آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم سے متصل باتھ روم میں باتھ ٹب کے کنارے بیٹھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ سکندر عثمان کے بے حد قریب تھا، اور یہ قربت آج عجیب طرح سے اذیت دے رہی تھی اسے۔ وہ اپنی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اس نے سکندر عثمان کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کو نوٹس SIF ہی نہیں کیا تھا۔ نوٹس تو تب کرتا جب وہ ان سے باقاعدگی سے ملتا۔ اسے گرداب کی طرح الجھائے ہوئے تھا۔ اس کے پروجیکٹس نے اب اس کے پیروں کے پروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ سفر میں رہتا تھا، 4-5 سال میں دنیا کے بڑے فائنینشل مارکیٹس میں ایک شناخت بنا رہا تھا، بے حد منفرد SIF انداز میں تیز رفتار ترقی کے ساتھ کام کے اس رفتار نے اسے بہت سی چیزوں سے بے خبر بھی کیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا، اور اب وہ حل ڈھونڈ رہا تھا، اور حل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ مستقل امریکہ شفٹ ہونے پر کبھی تیار نہیں ہوتے۔ سلار کو اس کا اندازہ تھا، اور امریکہ چھوڑ کر ان کے پاس مستقل آ جانا سلار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود حل سامنے تھا، بے حد مشکل تھا لیکن موجود تھا۔ امامہ تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ۔ اس رات اس نے بالآخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں تم حمین، عنایہ اور عیسیٰ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے، میں ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے دیکھا ہے پاپا کو، وہ بے حد رنجیدہ تھی۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں امریکہ میں۔ امامہ نے جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، میں آتا جاتا رہوں گا۔ جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ، مجھے وہاں فیملی کے ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 2 منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے اپنے پیرنٹس بھی ہیں یہاں، وہ بھی بہت بوڑھے ہیں، تم یہاں رہو گی تو ان سب کی دیکھ بھال کر سکو گی، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سلار، اس لیے ان کا حوالہ نہ دو۔ تم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی کیا؟ انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ کوئی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہے، چند گھنٹے ہی رہے، لیکن حال چال پوچھنے والا ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ اپنے پیرنٹس کی بات کرنے سے زیادہ اس کے پیرنٹس کی بات کر رہا تھا۔ امامہ کو برا لگا، اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سلار، اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی، آج بھی ان کو ایشو نہ بناؤ۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے جواباً کہا۔ وہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی یہاں میرے گھر پر؟ سلار نے دو ٹوک انداز میں اس سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ سلار نے اس سے نظریں چرا لی۔ ان سب کو تمہاری ضرورت ہے امامہ، اور تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، امامہ نے گلہ کیا تھا۔ ان سب کے پاس زندگی کے زیادہ سال نہیں ہیں، میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے کہہ نہیں سکی، وہ اس کے ساتھ بھی تو اسی لیے چپکی رہنا چاہتی ہے، اسے بھی تو اس کی زندگی کا پتہ نہیں تھا۔
डॉक्टर्स ने कहा था 5-7 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और वो इसे इससे भी पहले अपने से अलग कर रहा था। वो ये सारी बातें सोचना ही नहीं चाहती थी। जिंदगी के किसी भयानक ख्वाब के बारे में, मुस्तकबिल के बुरे दिनों के बारे में, वो फिलहाल सिर्फ हाल के बारे में सोचना चाहती थी। जो सामने था, जो आज था, वो इसी में जीना चाहती थी। तुम्हें मेरी जरूरत है सलार, अकेले तुम कैसे रहोगे, वो इससे कह रही थी। मैं रह लूंगा मामा, तुम जानती हो मैं काम में मसरूफ रहता हूँ तो मुझे सब कुछ भूल जाता है। ये सच था, लेकिन इसको नहीं कहना चाहिए था। अमामा हर्ट हुई थी, वो कुछ बोल ना सकी थी। इसकी आंखें आंसुओं से पल भर में भर गई थी। सलार इसके बराबर सोफे पर बैठा था। इसने अमामा से नजरें चुराने की कोशिश की थी, नहीं चुरा सका। जिंदगी में इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचता रहे तो खुद गर्ज हो जाता है। इसने अमामा को जिससे वजाहत एक फिलॉसफी में लपेट कर पेश करने की कोशिश की थी। अमामा कायल नहीं हुई। मुझे पता है तुम्हें जरूरत नहीं है, न मेरी न बच्चों की। तुम्हारे लिए काम काफी है। काम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी तफरीह भी, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा काम और तफरीह सिर्फ तुम लोग हो। इसने भराई हुई आवाज में गिला भी किया, इसकी बेहिसी भी बताई, अपनी मजबूरी भी सुनाई। तुम ये नहीं सोचते कि तुम अभी अंडर ट्रीटमेंट हो? तुम्हें भी किसी ख्याल रखने वाले की जरूरत है। वो जिसे से याद दिला रही थी। बीमारी का नाम लिए बगैर के इसे भी तीमारदारी की जरूरत थी। पुरानी बात हो गई अमामा, मैं ठीक हूँ। 5 साल से इस बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। इसलिए जैसे अमामा के खदशात दीवार पर पढ़कर भी फूंक से इन्हें उड़ाया था। मैं पापा को इस हाल में यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकता, नौकरों के सर पर। मैं हुमैन को इनके पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं हुमैन को अकेला यहाँ नहीं रख सकता, समझो। रिक्वेस्ट इसलिए तुम्हारी जरूरत है इस घर को। तुम इसे खुदगर्जी या फिर इसरार समझो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान आ जाओ, यहाँ इस घर में। इसने सलार की आवाज और आंखों में रंजीदगी देखी थी। मेरे लिए तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है। मैं आदी हो गया हूँ तुम्हारा, बच्चों का, घर के आराम का, लेकिन मेरे माँ बाप की बेहद एहसानात हैं हम पर। इनको कंफर्ट पर, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, हम दोनों पर। मैं अपने लिए छोड़ने का हौसला रखता हूँ, ये फर्ज है मुझ पर। कंफर्ट, वो जो कुछ इससे कह रहा था वो मशवरा और राय नहीं थी, ना ही दरख्वास्त। वो फैसला था जो वो कर चुका था और अब सिर्फ इसे सुना रहा था। वो इसका चेहरा देखती रह गई। वो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन गलत वक्त पर कह रहा था। वो इससे कुर्बानी मांग रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मांग रहा था। वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये बात सेंट बी कहे बगैर इसके पास से उड़ गई थी। वो सलार को समझ नहीं आई थी। 2 हफ्तों के बाद अमेरिका वापस जाते हुए सलार ने सिकंदर उस्मान को अपने पैसे के बारे में बताया तो वो खुश नहीं हुए थे। नहीं, बेवकूफ़ी की बात है ये, मामा और बच्चों को यहाँ शिफ्ट करना। उन्होंने फौरी तौर पर कहा था, इनकी स्टडीज का हर्ज होगा और यहाँ क्यों ला रहे हो इन्हें? तो क्या बनती है? सलाह ने इन्हें ये नहीं बताया कि वो इनके लिए कर रहा था ये सब। माली तौर पर मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ बस पापा, वहाँ मुश्किल हो रहा है सब कुछ। बाप से झूठ बोला, वो इन्हें जरा एहसान करना नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा। यहाँ कुछ अरसा सेविंग होती जा रही है, वहाँ अखराजात हम कर लेंगे। इसने बेहद रवानी से कहा। तो थोड़ा बहुत सेव हो जाएगा, सिकंदर उस्मान से कहा। बहुत कामयाब है तुम्हारा पैकेज, बहुत अच्छा है SIF, लेकिन तुम तो कह रहे थे। वो कुछ मतहूश हुए। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जा रहा है, इसके हवाले से मसाइल नहीं है मुझे। नहीं हो पा रहा, फिर बच्चियां बड़ी हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सेविंग्स हो जाए, लेकिन बस कुछ साल पाकिस्तान में रहें, अपनी वैल्यूज का पता हो, फिर ले जाऊं इन्हें। इसने अपने बहाने को कुछ इजाफी सहारे दिए। सिकंदर उस्मान अभी भी पूरी तरह कायल नहीं हुए थे। तुम अकेले कैसे रहोगे सलार? तुम्हारा अभी इलाज हो रहा है, बीवी बच्चों के बगैर वहाँ कौन ख्याल रखेगा तुम्हारा? वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो अकाउंट में कुछ रकम है वो तुम्हें दे दूँ, ताकि तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो। सलाह ने इनकी बात काट दी। बस पापा अब नहीं। इसने बाप का हाथ पकड़ लिया था। अब और कुछ नहीं। कितना करेंगे आप मेरे लिए? मुझे भी कुछ करने दें। ऐसा नहीं कर सकता तो हक ही अदा करने दें मुझे। इसने अजीब बेबसी से बाप से कहा। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी, सलाह ने एक बार फिर इनकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी आपकी फिक्र रहती है पापा, इसलिए रखना चाहते हो इन सबको यहाँ। सिकंदर उस्मान जैसे बूझ गए थे। आप जो चाहें समझ लें, मैं और तैयबा बिल्कुल ठीक हैं, पुराने मुलाजिम हैं हमारे पास, वफादार, सब ठीक है। तुम मेरी वजह से ये मत करो। वो अब भी तैयार नहीं थे। औलाद पर उन्होंने हमेशा एहसान किया था, एहसान लेने की आदत ही नहीं थी इन्हें, और वो भी उम्र के इस हिस्से में।
बेहद ख्वाहिश होने के बावजूद, मजबूर होने के बावजूद सिकंदर उस्मान औलाद को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। मैं वैसे भी सोचता हूँ फैक्ट्री जाया करूँ, कभी कभार काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है, इसलिए ज्यादा बोलने लगा हूँ मैं। वो अपने अल्जाइमर को शक्ल बदल रहे थे। तुम्हारी बीवी और बच्चों को तुम्हारे पास रहना चाहिए सलार, तुम जबरदस्ती इन्हें यहाँ मत रखो, मेरे और तैयबा के लिए बस। उन्होंने जैसे सलार को समझाने की कोशिश की। जबरदस्ती नहीं रख रहा पापा, इनकी मर्जी से ही रख रहा हूँ। वो यहाँ आकर हमेशा खुश होते रहे हैं, अब भी खुश होंगे, इसने बाप को तसल्ली दी थी। इसे अंदाजा भी नहीं था बाप का तजुर्बा कितना दुरुस्त होने वाला था। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान शिफ्ट होने की सबसे ज्यादा मुखालफत हुमैन सिकंदर की तरफ से आई थी, और ये मुखालफत सिर्फ सालार के लिए ही नहीं, अमामा के लिए भी खिलाफ तवक्को थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दादा के साथ इसकी बनती भी बहुत थी और वो दादी का लाडला भी था, दिखती थी। और अब बेक वक्त मुस्तकिल तौर पर अट्रैक्शन पाकिस्तान में इससे बड़ी। हर पाकिस्तान जाकर रहने पर सबसे ज्यादा इतराज इसी ने किए थे। बेटा, दादा और दादी बूढ़े हो गए हैं, तुमने देखा वो बीमार भी थे, इन्हें हमारी केयर की जरूरत है। अमामा ने इसे समझाने की कोशिश की थी। सर्वेंट्स हैं इनके पास, वो इनका ख्याल अच्छी तरह रख सकते हैं। बिल्कुल कायल हुए बगैर बोला। सर्वेंट इनकी अच्छी केयर नहीं कर सकते, अमामा ने जवाबन कहा। आप इन्हें ओल्ड एज होम भेज दें। वो इस मुआशरे का बच्चा था, इसी मुआशरे का बेरहम लेकिन अमली हल बता रहा था। कल को हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमें भी ओल्ड एज होम भेज दोगे? अमामा ने कुछ नाखुश होते हुए इससे कहा। आप इन्हें यहाँ ले आए। उमैन ने माँ की खफगी को महसूस किया। वो यहाँ नहीं आना चाहते, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। अमामा ने इससे कहा। फिर हम भी अपना घर क्यों छोड़े? मैं अपना स्कूल क्यों छोड़ूं? वो दुनिया के 10 ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था, गलत बात नहीं कह रहा था। रीजनलिटी दिमाग का सबसे बड़ा मसला यही होता है, वो अक्ल से सोचता है, दिल से नहीं। ये हमारा घर नहीं है हुमैन, किराए का है। हम सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, और जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो बाबा और जिब्रील इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि इन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होगी। जिब्रील वैसे भी यूनिवर्सिटी में है, तुम्हारे बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहते हैं। अमामा इसे कहती चली गई थी। जिब्रील पाकिस्तान नहीं जाएगा? हुमैन ने पूछा। नहीं, तुम्हारे बाबा इसे इसलिए पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है, इसकी स्टडीज मुतासिर होंगी। अमामा ने इसे समझाया। मुझे भी हर साल MIT जाना है, मैं कैसे जाऊं, मेरी भी तो MIT होंगी। वो खफा हुआ और बेचैन भी। इसे अपना समर प्रोग्राम खतरे में पड़ता दिखा था। तुम अभी स्कूल में हो, जिब्रील यूनिवर्सिटी में है, और पाकिस्तान में बहुत से स्कूल्स अच्छे हैं। जिब्रील कवर नहीं कर सकेगा, तुम कवर कर लोगे। अमामा ने इसे लॉजिक देने की कोशिश कर रही थी जो हुमैन के दिमाग में नहीं बैठ रही थी। दैट्स नॉट फेयर मम्मी, हुमैन ने दो टोकनदाज में कहा। अगर जिब्रील पाकिस्तान नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मुझे MIT जाना है। वो वाज़े तौर पर बगावत कर रहा था। ठीक है, तुम मत जाओ, मैं अनाया और रईसा चले जाते हैं, तुम यहाँ रहना अपने बाबा के पास। अमामा ने एकदम इससे बहस करना बंद कर दिया। ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है, तुम डिसओबे करना चाहते हो और हम सब इसको मानेंगे। तुम्हारी मर्जी, मैं मजबूर नहीं करूंगी। अमामा कहते हुए वहां से उठकर चली गई थी। दुनिया के वो दो बेहतरीन दिमाग एक दूसरे के मुकाबले आ गए थे। तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हुमैन? इस रात सलार ने हुमैन को बिठा कर पूछा था। अमामा ने इसे डिनर से कुछ देर पहले इसके इनकार के बारे में बताया था। नहीं, हुमैन ने बाप की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा था। और कोई भी जाना नहीं चाहता, इसने मजीद तबसरा किया। मैं किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सलार ने इसे टोक दिया। हुमैन सर झुकाए चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने सर उठाकर बाबा को देखा और नफी में सर हिला दिया। वजह? सलार ने इसी अंदाज में कहा। बहुत सारी हैं, इसने बेहद मुस्तकिम अंदाज में बाप को जवाब दिया। किसी भी काम को करने या ना करने की सिर्फ एक वजह होती है, बाकी सब बहाने होते हैं, इसलिए तुम सिर्फ ये वजह बताओ, बहाने नहीं। सलार ने अपने 11 साल बेटे के जखीरा अल्फाजी की हवा निकालते हुए कहा। हुमैन इस मीटिंग के लिए पहले से तैयार था और वजूहात को जमा करने पर भी अच्छा खासा वक्त सर्व कर चुका था। बाप ने जैसे एक उंगली से पकड़कर दोबारा जीरो पर खड़ा कर दिया था। मैं पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो सकता, हुमैन ने बिलाखिर वो एक वजह तलाश करके पेश की। अगर तुम कॉन्गो में एडजस्ट हो सकते हो तो पाकिस्तान में भी हो जाओगे। पाकिस्तान अफ्रीका से ज्यादा बुरा नहीं, सलार ने इसी अंदाज में कहा। तब मैं छोटा था, हुमैन ने मुदाफियाना अंदाज में कहा। तुम अब भी छोटे ही हो, सलार ने बात काटी। लेकिन मैं बड़ा हो रहा हूँ, हुमैन ने जैसे एतराज किया।
اس میں کافی ٹائم لگے گا تمہارے لیے، کم از کم 25 سال۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے سٹیز کیا۔ وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سیریس بابا، اس نے سالار کی بات سے محظوظ ہوئے بغیر کہا۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ وہ کسی بڑے کی طرح اٹس ناٹ مائی آئیڈیا فار ممی آئیدر۔ وہ باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، میں وہاں ہالی ڈیز پر جا سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ بالکل امریکی انداز میں بہت صاف گوئی سے بات بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ چند سالوں کی بات ہے ہومین، اس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤ گے کہ امریکہ میں واپس آ کر کہیں بھی پڑھ سکو۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ 11 سال کا بچہ باپ کو بے حد معتدل دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے، 1 سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ تو تم یہ قربانی نہیں دو گے؟ سالار نے اس بار بات بدلی۔ جبریل بھی تو دے سکتا ہے قربانی، آپ بھی تو دے سکتے ہیں، میں ہی کیوں؟ اس نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر ہو کہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے بات کرنا تھی، ان کے سوالات اور اعتراضات کے انبار فنش ڈیلز کو سمیٹنا آسان کام تھا۔ اپنے 11 سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ قربانی کیوں دے جو اس کا بھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ کیوں؟ صرف ان ایکویشنز اور اس کیوں کا جواب فارمولا اور اخلاقی اقدار میں ملتا تھا جس سے اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس سے یہ سوال کر رہی تھی۔ تم جانتے ہو تمہارے دادا کو الزائمر ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو۔ تم سے انہیں زیادہ محبت ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم ان کے پاس رہو۔ سالار نے جیسے وہ جواب ڈھونڈنا شروع کیے جس سے وہ اسے سمجھا پاتا۔ ویسے بھی جب تمہاری ممی انایا اور عیسیٰ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے؟ گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوگا، سالار نے کہنا شروع کیا۔ I can take care of myself، حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہا۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں بابا، میں اکیلا رہ سکتا ہوں، ریلیٹو ہوں اور آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس نے سولوشن رکھنا شروع کیے۔ ان میں سے ایک بھی آپشن میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، تم ان کے ساتھ پاکستان جانا ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ آپ مجھے اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟ اس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اس سے ایسا سوال یا ایسی شکایت کی تھی۔ تم اس فرق کو ڈیفائن کر سکتے ہو؟ سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اسے 5 منٹ لگنے والے تھے زیادہ سے زیادہ اسے سمجھانے میں، اب جیسے یہ ایک پینڈورا باکس ہی کھلنے لگا تھا۔ آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد سالار نے اس سے کہا، اور میں اسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟ وجہ؟ وہ جیسے اس کے اس الزام کے بھی وضاحت چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، میں نہیں ہوں۔ بے حد روانی سے کہے گئے اس جملے نے سالار کو فریز کیا تھا۔ وہ واقعی پنڈورا باکس ہی کھول بیٹھا تھا، لیکن بہت غلط حوالے سے۔ وہ باغی نہیں تھا، نہ ہی بدتمیز، نہ ہی بد لحاظ، لیکن وہ جو سوچتا اور محسوس کرتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگا وہ سکندر عثمان تھا اور اپنے سامنے آن بیٹھا تھا۔ لاجواب، بے بس تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہرائی تھی، لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔ تمہیں جبریل برا لگتا ہے؟ سالار نے بے حد مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ ہی از مائی اونلی بردر، مجھے وہ کیسے برا لگ سکتا ہے؟ لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں لگتا۔ حمین کو یہ شکایت کب سے شروع ہوئی تھی اس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا، لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے حمین، اس نے بالآخر حمین سے کہا۔ وہ اپنے سلیپنگ سوٹ کے پاجامے کو گھٹنے سے رگڑ رہا تھا جسے اس میں سوراخ ہی کر دینا چاہتا ہو۔ بابا میں آ جاؤں؟ وہ جبریل تھا جو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا۔ سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ جذبس ہوئے تھے۔ ہاں آ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اندر آ کر حمین کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر اس نے باپ سے کہا، دادا کے پاس میں پاکستان چلا جاتا ہوں، میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکوں گا۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی، نہ سالار کچھ کہہ سکا نہ حمین کچھ بول سکا تھا۔ ان دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن جبریل پھر بھی یقیناً یہ گفتگو سن کر ہی آیا تھا۔ ممی اور حمین یہیں رہیں آپ کے پاس، میں اکیلا بھی ان کو سنبھال سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح مدھم مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا۔ پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لیے کم وقت لگتا ہے، یونیورسٹی کا سال ضائع ہونے سے
بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اتنے آرام سے پینک کہہ رہا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جبریل ایسا ہی تھا، کسی کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے والا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل، سلار نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا، میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ حمین کو آپ یہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں، اور میں یہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ جبریل نے سلار کے ٹوکنے کے باوجود اس سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سلار اور حمین خاموش ہی بیٹھے رہے۔ وہ بے حد آکورڈ صورتحال تھی جس کا سامنا ان دونوں نے چند لمحے پہلے کیا تھا۔ میرے اور امامہ کے لیے تم میں اور جبریل میں کوئی فرق نہیں، اسے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے عزت دینے ہیں، لیکن تم تینوں پر اسے برتری نہیں دیتے، اس لیے کبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی تفریق کریں گے۔ سلار نے بہت لمبی خاموشی کے بعد اس سے کہنا شروع کیا تھا، تمہارا دادا میری ذمہ داری اور میرا خیال تھا میں اپنی ذمہ داری تمہارے اور جبریل کے ساتھ بانٹ سکتا تھا، اس لیے یہ کوشش کی، لیکن تم پر زبردستی نہیں کروں گا میں۔ تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ۔ سلار اس سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ حمین وہیں بیٹھا رہا، سر جھکائے خاموش، سوچتے ہوئے۔ I hope you are not upset with me۔ جبریل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمین بستر پر جا کر لیٹا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بالآخر اس سے مخاطب کیا، اپسیٹ؟ جبریل نے پلٹ کر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا، کیوں؟ حمین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑے محتاط انداز میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا، تم نے ہماری باتیں سنی تھی؟ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبریل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ حمین کے تاثرات بدلے، ہلکی شرمندگی نے اسے جیسے کچھ ڈیفینسو کیا تھا اور اسی لیے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہو نا؟ حمین نے اپنے اندر ایک جملے کو ذرا سا بدلا، نہیں، جبریل نے اسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔ جبریل نے اس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب اسٹڈی ٹیبل سے پشت ٹکائے کھڑا تھا، تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ I didn't mean that۔ حمین نے جیسے اسے Trust me, I have nothing against you صفائی دینے کی کوشش کی۔ I know it۔ جبریل نے نرمی سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو ہلکے سے تھپتھپایا، لیکن he must have been۔ تمہیں بابا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان میں تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں گی، میں چلا جاؤں گا۔ حالانکہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں سٹے نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل کو لگا وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ جبریل اسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے حمین سے کہا، چند سالوں کی بات ہے حمین، پھر بابا تمہیں بھی واپس امریکہ بلا لیں گے۔ جبریل نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ I don't dream much۔ اس نے جواباً چادر اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جبریل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حمین کے دماغ میں کیا تھا اسے بوجھنا بڑا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، شاید اس کے اپنے لیے بھی۔ جبریل ایک بار پھر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا، اب اسے کل پھر واپس جانا تھا، اس کا اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ Who will stay with بابا؟ کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جبریل نے پلٹ کر ایک بار پھر بستر پر لیٹتے ہوئے حمین کو دیکھا۔ اس نے تقریباً 10 منٹ بعد اسے مخاطب کیا تھا، جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکا تھا، اور اس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اسے جسے حمین کی نہیں MIT سوچ تک رسائی دی تھی۔ وہ واقعی بے حد گہرا تھا۔ یہ امریکہ نہیں تھا جو حمین کو واپس جانے سے کھینچ رہا تھا، یہ سلار سکندر کی بیماری تھی جس نے حمین کو اسے اکیلا چھوڑ دینے پر مدہوش کیا تھا۔ وہ وہاں باپ کے پاس رکنا چاہتا تھا، بغیر اسے یہ بتائے کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں فکر مند تھا، بالکل اسی طرح جیسے سالار سکندر اپنے باپ کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم بابا کی وجہ سے رکنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے اس کا راز افشاں کر دیا۔ حمین کی چادر سے ڈھکے وہ وجود میں حرکت ہوئی، شاید اپنے دل کا بھید یوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اسے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے چادر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹائی تھی۔ جبریل پھر بھی اسے دیکھتا رہا۔ حمین سکندر ایک خرگوش کی طرح سرنگیں بنانے کا ماہر تھا، پلکیں جھپکے بغیر میں کیا کیا کود کر کہاں کہاں سے پہنچنے کا شوقین۔ وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکالتا تھا، وہ لمحے بھر میں دل میں واپس آ نکلتا تھا۔ جبریل سکندر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہا جس کی اسے اکثر سمجھ نہیں آتی تھی، اور جب آتی تھی تو اسے اپنا سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔ تم سب لوگ جا رہے ہو؟ بار بار پوچھنے اور اس کا جواب انایا سے ہاں میں ملنے کے باوجود ایرک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن تھا اور کبھی ہو سکتا تھا، لیکن کیوں؟ اگلا سوال کرنے کا خیال اس سے بڑی دیر بعد آیا تھا، حالانکہ
अनाया इस सवाल से पहले इसका भी जवाब दे चुकी थी। बाबा चाहते हैं हम कुछ साल दादा दादी के पास रहें, वो अकेले हैं पाकिस्तान में। अनाया ने हमेशा की तरह बड़े तहम्मुल से इसके सवाल का जवाब एक बार फिर दोहराया। चंद साल, कितने साल? एरिक बेहद डिस्टर्ब था। पता नहीं, अनाया ने जवाब दिया और इसे वाकई इस सवाल का जवाब नहीं पता था। लेकिन ये घर क्यों छोड़ रहे हो तुम लोग? तुम्हारे फादर और जिब्रील तो नहीं जा रहे? एरिक ने इसी अंदाज में कहा था। बाबा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हैं, जिब्रील वैसे ही यूनिवर्सिटी में है, इतना बड़ा घर हमारी जरूरत नहीं रहा अब, अनाया ने दोहराया। लेकिन तुम परेशान मत हो, हम लोग अमेरिका तो आते जाते रहेंगे और तो पाकिस्तान आ सकते हो जब भी तुम्हारा दिल चाहे। अनाया को अंदाजा था इसकी अपनी फैमिली के साथ जज्बाती वाबस्तगी का। वो इनके बगैर अकेले रह जाने वाला था। वो दोनों इस वक्त स्कूल के ग्राउंड के एक बेंच पर ब्रेक के दौरान बैठे हुए थे। एरिक ने इसकी बातों के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो बस खामोश बैठा रहा। वो बस इस बात को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था जो शौक इसने अनाया के इंकिशाफ ने इसे दिया था। क्या मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता? एक लंबी खामोशी के बाद एरिक ने बिलाखिर इससे कहा। सवाल ने अनाया को मुश्किल में डाल दिया। जवाब वो जानती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। तुम्हारी मम्मी और फैमिली को तुम्हारी जरूरत है, तुम इन्हें छोड़कर हमारे साथ कैसे जा सकते हो? अनाया ने अपने इनकार को बेहद मुनासिब अल्फाज में इस तक पहुंचाया था। मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा, मैं उनसे इजाजत ले सकता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? एक और सवाल आया। अनाया एक बार फिर वहीं खड़ी हो गई। एरिक, मैं नहीं जानती, मैं मम्मी और बाबा से पूछ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को इस तरह छोड़कर एक दूसरी फैमिली के साथ जाना ठीक नहीं है। अनाया ने कहा था। वो 13 साल की थी, इसे बड़ों की तरह नहीं समझा सकती थी, फिर भी इसने कोशिश की थी। एरिक इसकी बात पर खामोश रहा। फिर इसने कहा, चंद सालों तक मैं वैसे ही यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा, घर से तो वैसे भी जाना ही होगा मुझे। इसने सोचे समझे बगैर कहा, फिर तो और भी जरूरी है कि ये वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारो। अनाया ने इसी नर्म लहजे में कहा, मैं अपने आप को तुम्हारी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, क्या तुम लोग ऐसा नहीं समझते? एरिक ने जवाबन इसे कहा और जिसे फिर से इसे मुश्किल में डाला। एरिक, मैं मम्मी से बात करूंगी। अनाया ने जैसे इस आर्ग्यूमेंट से निकलने के लिए जैसे एक हल तलाश किया। अगर तुम लोग चले गए तो मेरा घर एक बार फिर से टूट जाएगा। एरिक ने इससे कहा, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहां मैं जा सकूं। इसने जैसे मिन्नत वाले अंदाज में कहा था, यूं जैसे ये सब अनाया के हाथ में था। वो चाहती तो सब कुछ रुक जाता। अनाया का दिल बुरी तरह पसीजा था। ऐसे मत कहो एरिक, दूर जाने से ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे साथ हमारा ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, बात भी करेंगे। छुट्टियों में तुम हमारे पास पाकिस्तान आ सकते हो और हम ईमेल्स पर भी बात करेंगे। कुछ भी खत्म नहीं होने जा रहा अमेरिका में। अनाया ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि एरिक ठीक कह रहा था। फासला देव होता है, सारे ताल्लुक खा जाता है, प्यार का, दिल का, दोस्ती का, रिश्ता का। अगर वो सब नहीं रोक सकते थे तो तुम रुक जाओ। एरिक ने एकदम इससे कहा। वो बुरी तरह गड़बड़ाई। मैं कैसे रुक सकती हूँ? पहले ही हुमैन जिद कर रहा है और इसकी बात कोई नहीं मान रहा और मुझे तो कोई इतराज भी नहीं है। मैं मम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ दादा दादी का ख्याल रखने में, इसने एरिक से कहा था। वो बेख्तियार इससे कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। इतने साल अनाया के साथ पढ़ने, इसके साथ दोस्ती और तकरीबन हर रोज उसके घर जाने की बावजूद इनके दरमियान ऐसी बेतकल्लुफी नहीं थी कि वो उससे कुछ भी कह देता या गेंस कह सकता। अनाया सिकंदर का वो रख रखाव माँ बाप की तरफ से था या खानदानी तरबियत थी, लेकिन ये जिस भी वजह से था उसने अनाया सिकंदर का रखा था। और एरिक के एनर्जेटिक को हमेशा अपने क्लास के लड़कों के लिए आई लव यू, वो जैसे मुआशरे में पढ़ रहे थे वहाँ फैंटेसी लिए हेलो हाय जैसी चीज बन कर रह गई थी। कोई भी किसी से भी कभी भी कह सकता था और सुनने के लिए तैयार रहता था। ना ये बुरी चीज समझी जाती थी, ना बुरा बना दिए जाने वाली चीज थी। इसके बावजूद एरिक को झिझक थी। इसे लगता था वो अगर कभी अनाया से अपनी मोहब्बत के इजहार इस तरह करेगा तो वो नाराज हो जाएगी और फिर शायद इस घर में इसका दाखिला ही बंद हो जाएगा। और फिर इसने अमामा से वादा किया था कि वो ऐसी कोई बात अनाया से नहीं कहेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता और एरिक अब अचानक अपने आप को एक मखमसे में पा रहा था। वो अब जा रही थी शायद हमेशा के लिए और पता नहीं वो लोग दोबारा कभी मिल भी पाते या नहीं। तो क्या इसे इससे ही कहना चाहिए था वो सब जो अनाया के लिए दिल में महसूस करता था, या ऐसे ही खामोश रहना चाहिए था इसे? इस दिन पहली बार अनाया के हवाले से एरिक बुरी तरह परेशान हुआ था। ये नहीं लग रहा था कि वो जा रही थी, इसे लग रहा था वो उसे खोने वाला था और इसके पास इस मसले का कोई हल फौरी नहीं था। समझ नहीं आ रहा था और जो हल वो वहाँ बैठे बैठे एरिक का बिल आखिर समझ आया था वो किस कदर बेवकूफाना था इसका इसे अंदाजा भी नहीं था।
आई वॉन्ट टू मैरी यू योर डॉटर। ये इस 2 सफ़ों पर मुश्तमिल खत की हेडलाइन थी जो सलार को एरिक की तरफ से मिला था, और सलार ने बेहद खामोशी के आलम में इस खत को पढ़ा था। वो शॉक्ड हुआ था, इसलिए नहीं कि वो एरिक की तरफ से ऐसे किसी खत की तवक्को नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने ये सोचा ही नहीं था कि अनाया इतनी बड़ी हो गई कि कोई इसके हवाले से इससे ऐसी बात भी कर सकता है। वो इस मामले में रिवायती भी था, जिसे अभी भी अपनी बेटी बहुत छोटी लग रही थी। अमामा इसे जाते देख बेडरूम में आई थी। जब इसने डॉग चेक करते सलार को एक कागज हाथ में लिए सोचों में गुम देखा। वो चाय का कप रख कर जाने लगी थी जब सलार ने इसे रोका और वो खत से थमा दिया। मामा ने कुछ उलझे अंदाज में इस खत को पकड़ा था, लेकिन पहली हेडिंग पर नजर पड़ते ही इसका दिमाग जैसे भाग से उड़ गया था। दूसरी लाइन पर नजर डाले बगैर भी वो जानती थी वो कौन हो सकता था। गुस्से की एक लहर इसके अंदर उतर आई थी और सुर्ख चेहरे के साथ उसने सलार से कहा, एरिक। सलार ने सर हिलाते हुए चाय का सिप लिया और इससे कहा, सारा लेटर पढ़ो। अमामा ने लेटर पर एक नजर डालते हुए कहा, इसे पढ़े बगैर भी वो जानती थी इसने क्या लिखा होगा। वो फिर भी खत पढ़ रही थी। सलार चौंका था। तुमसे बात की है इसने पहले? नहीं, मैं फिर भी जानती हूँ। अमामा ने बिलाखिर खत खत्म करते हुए इसे तह करके सलार की तरफ बढ़ाया। वो बहुत खफा लग रही थी। खत में एरिक ने हत्तुल मखदूर बेहद मुनासिब अंदाज में सलार सिकंदर से अनाया के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। वो इससे किस कदर मोहब्बत करता था और क्यों इसके लिए अनाया का साथ जरूरी था। फिर इसने सलार को बताया था कि वो इसके लिए क्या क्या कर सकता था और अनाया को कितना खुश रखेगा। वो खत इसकी अपनी बेटी के हवाले से ना लिखा गया होता तो सलार इस खत को पढ़कर महजूज होता, हंसता और शायद एरिक से छेड़छाड़ भी करता, लेकिन वो इस बचकाना इशू को अपनी बेटी के हवाले से था। बचकाना होते हुए भी कह रहा था, अनाया पसंद करती है एरिक को। जो पहला ख्याल सलार के जहन में आया था वो अब ये आया था, तुम कैसी बातें करते हो सलार? अनाया बेचारी को पता तक नहीं होगा कि ये क्या ख्याली पुलाव पकाता रहता है। अगर ऐसी कोई बात होती वो मुझसे कहती। एरिक एक फैमिली फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं है। अमामा ने बेहद नागवारी से इसके सवाल को बिल्कुल रद्द करते हुए जवाब दिया, ये जरूरी नहीं है अमामा कि हमें अपने औलाद के दिल की हर बात पता हो। अमामा ने इसकी बात काट दी और कहा, मुझे है। वो हंस पड़ा, मैं दिन रात उनके साथ रहती हूँ सलार, तुम नहीं रहते। तुम बाप हो, औलाद को और तरह जानते हो, मैं माँ हूँ, इनको और तरह देखती हूँ। इसने सलार के सवाल पर हंसने पर जैसे वजाहत की, तुम ठीक कह रही हो। इसके बावजूद ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे भी अगर औलाद को नजरों के सामने रखा जाए तो इनके दिलों को भी देखा जा सके। मैं खुश फहमियाँ और गलत फहमियाँ होकर सोच रहा हूँ, रिलेशनल दोनों ही नहीं पालना हो मामा। बाप हूँ इसलिए माँ की तरह जज्बाती होकर नहीं। अमामा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो ठीक कह रहा था, वो दोनों कई सालों से इकट्ठे थे। इसे यह खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए थी कि अनाया को एरिक की पसंदगी के बारे में बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होगा। इसका दिल चाहता था ना हो, लेकिन सलार दिमाग की बात कर रहा था। मैं अनाया से पूछ लूंगी, इसने यकदम कहा। क्या? सलार चाय पीते पीते रोका। एरिक के हवाले से, इस खत के हवाले से, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे इससे। वो अजीब तरह से उलझ कर सलार इसकी बात पर हंसता। हाँ, ये खत पढ़ते कि शी इज जस्ट अ किड रुकी हुए मैं भी यही सोच रहा था कि कोई मेरी बेटी के बारे में इस तरह, लेकिन ये जिंदगी और हम, शी इज जस्ट अ किड, सोच भी कैसे सकते हो? अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ 8-9 साल के बच्चे अभी बॉयफ्रेंड से वाकिफ हैं, इसलिए हमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट गर्लफ्रेंड्स के होकर इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा। तुम अभी अनाया से बात रियलिस्टिक मत करो, मुझे एरिक से बात करने दो। सलाह ने जैसे इस सूरत हाल का तजिया करते हुए एक हल निकाला, और इससे मिलकर तुम क्या करोगे? अमामा को जैसे ये हाल पसंद नहीं आया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करूंगा, इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब बात कितना बचकाना है और क्यों मुमकिन नहीं है। सलाह ने जवाबन कहा, 2-3 साल पहले भी एरिक ने ऐसी ही बात की थी अनाया के बारे में। तब भी मैंने इसे समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं है और बेहद छोटा है। लेकिन मैं कुछ सख्ती से मना इसलिए नहीं कर सकी इसे क्योंकि इस वक्त वो अपने बाप की मौत की वजह से बहुत अपसेट था। मैं नहीं चाहती थी और वो और अपसेट हो। अमामा ने सलार को पहली बार एरिक के साथ होने वाली वो गुफ्तगू दोहराई थी। सलार इसकी बात पर जैसे हैरान हुआ। तुमने क्या कहा था? तब इसे मैंने इससे कहा था कि वो भी सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दे और मुझसे वादा करे कि वो अनाया से इस बारे में बात नहीं करेगा जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर लेता। अमामा ने इससे बताया। एंड ही एग्रीड? सलाह ने जवाबन इससे पूछा। अमामा ने सर हिलाया दिया। इसने अनाया से कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, वरना वो मुझे जरूर बताती। अमामा ने कहा, इसीलिए इसने खत में रेफरेंस दिया हुआ था कि वादे के मुताबिक मैं अनाया के बजाय आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा, नजर अम्यूज था कि वो किस वादे के रेफरेंस दे रहा है।
सलार पहली बार आया था। अमामा के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी। मेरा ख्याल है अब मुझे इससे जरूर मिलना चाहिए। ये सारी सूरत हाल क्या दिलचस्प है। सूरत हाल में तुम्हें जिंदगी में हमेशा वेड लोग ही अच्छे लगते हैं, वो कहे बगैर ना रह सकी। वेड सिचुएशन, वो बिल्कुल ठीक कह रही हो तुमसे मेरी शादी इसका सबूत है। और वो अब इसे टीज कर रहा था। देखो ये कितनी अच्छी रही है हम दोनों के लिए, वो इसीलिए इसका खासा थी। वेट अपने इस जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद वो आज भी इसे लाजवाब कर देने की सलाहियत रखता था और वक्तन फवक्तन इसका मुजाहरा करता रहता था। तुम एरिक से मिलकर क्या करना चाहते हो? अमामा ने इसके तबसरे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए पूछा। देखना चाहता हूँ इस प्रपोजल, सिंसियरिटी, बातचीत करना चाहता हूँ इसके हवाले से। वो हॉल कर रह गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा सलार? तुम एक 13 साल के बच्चे के प्रपोजल की बात कर रहे हो, एक गैर मुस्लिम की, और तुम अपनी बेटी के करने की बात कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? ये कंसिडर है, इसीलिए मजाक नहीं है। अमामा ने बेहद खफा होकर इससे कहा था। हाँ मैं जानता हूँ ये मजाक नहीं है, वो 13 साल का बच्चा है, ये मैं भी जानता हूँ। गैर मुस्लिम है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो 13 साल का बच्चा अगर 10-11 साल की उम्र में भी यही प्रपोजल देता है और अपने वादे की पासदारी कर रहा है तो फिर मैं इसे संजीदगी से नहीं ले सकता। सलार अब संजीदा हो गया था। अमामा बेयकीनी से इसका चेहरा देखती रही। डोंट टेल मी कि तुम अनाया के लिए इसे कंसिडर कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ इस एक ऑप्शन को देख रहा हूँ जो जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी के हवाले से आया है, सलार ने जवाबन कहा। इस ऑप्शन को अपनी बेटी के लिए सलार मैं किसी गैर मुस्लिम को कंसिडर नहीं करूंगी। अमामा ने दो टोक अंदाज में इससे कहा, मजाक में भी नहीं। सलार ने इसके चेहरे को बगैर देखते हुए कहा था, मैं भी किसी गैर मुस्लिम के ऑप्शन को कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन किसी ऐसे गैर मुस्लिम का वो जरूर करूंगा जो मुसलमान होने की ख्वाहिश और इरादा रखता हो। इसने भी इसी अंदाज में कहा, मैं इस ऑप्शन को आइडियलिस्टिक कंसिडर नहीं करूंगी और ना ही इस बात पर यकीन रखती हूँ कि मैं अपनी बेटी को किसी मुश्किल सूरत हाल और फैंटेसी में डालूंगी ऐसे किसी मुमकिन रिश्ता के जरिए। अमामा ने इसकी बात के जवाब में कहा, हम रिस्क दूसरों के लिए ले सकते हैं, दूसरों को नसीहतें भी कर सकते हैं और दूसरों को ऐसे बड़े कामों पर उकसा भी सकते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें अपने बच्चों के लिए हम नहीं चाह सकते। वो कहती गई थी, मैंने तुमसे शादी करके एक रिस्क लिया था अमामा, मुझे भी बहुत रोका गया था, बहुत सारे वहम मेरे दिल में डालने की कोशिश की गई थी। दुनिया में लोग ऐसे रिस्क लेते हैं, लेने पड़ते हैं। सलार ने जवाबन इससे जो कहा था इसने मामा की जबान से सारे लफ्ज छीनकर इसे जैसे गूंगा कर दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, लेकिन इसे एरिक के साथ अपना मुवाजना और अंदाज में अच्छा नहीं लगा था। एरिक और मुझ में बहुत फर्क है। मजहब में फर्क होगा लेकिन कल्चर में नहीं। हम हमसाए थे, एक जैसे खानदानों से ताल्लुक रखते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो अपने दिफा पर पुरजोश दलाइल देते देते यकदम अपना जोश खोती चली गई थी। इसे यकदम अंदाजा हुआ था कि अपने दिमाग में दिया जलाने वाला इसका हर एक सवाल एरिक के दरमियान मौजूद मुमासलत को मजीद साबित कर रहा था। आर्ग्यूमेंट्स था पर कर रहा था, ऑप्शन पर गौर नहीं कर रहा था। अब्दुल्ला के ऑप्शन में एरिक के हूँ 13 साल की उम्र में अपनी बेटी की किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर 13 साल की उम्र में भी मेरी बेटी की वजह से कोई मेरे दीन शटअप पोल की तरफ रागिब हो रहा है तो मैं सिर्फ इसलिए इसे दूंगा कि ये मेरी गैरत और माशरती रिवायात पर ज़ब्त के बराबर है। मुझे मुआशरे को नहीं अल्लाह को मुंह दिखाना है। सलार ने जिसे खत्म करने वाले अंदाज में बात की थी। अमामा कायल हुई या नहीं लेकिन खामोश हो गई थी। इसकी बात गलत नहीं थी लेकिन सलार को भी दुरुस्त थी। वो दोनों अपने आप को पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे और इनका पर्सपेक्टिव समझ रहे थे। वो पहला मौका था जब अमामा ने शुक्र अदा किया था कि वो पाकिस्तान जा रहे थे और अनाया और एरिक दूसरे से दूर हो जाते तो इसके ख्याल में एरिक के सर से अनाया का भूत भी उतर जाता। सलार के बरक्स वो अब भी ये मानने पर तैयार नहीं थी कि एरिक की इस्लामी और अनाया में दिलचस्पी हो सकती है। इसे यकीन था 13 साल का वो बच्चा 24-25 साल का होते हुए, लास्टिंग होते हुए जिंदगी के बहुत सारे नशोबो फराज से गुजरता और जिंदगी की रंगीनियों से मुतारिफ होता। फिर सलार सिकंदर का खानदान और इस खानदान की एक लड़की अनाया सिकंदर एरिक अब्दुल्ला को कहाँ याद रहती और इतनी याद कि वो इसके लिए अपना मजहब छोड़कर इसके पीछे आता। अमामा इस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्र था कि अगर अनाया इसका हिस्सा होती तो इस आउटसाइडेड गुजरती, वो सब कुछ की परेशानी इससे सिवा होती। मम्मी एरिक हमारे साथ पाकिस्तान जाना चाहता है, किचन में काम करती अमामा ठटक गई।
अनाया इसके साथ किचन में हाथ बटा रही थी जब इसके साथ काम करते करते इसने अचानक अमामा से कहा था। अमामा ने गर्दन मोड़कर इसका चेहरा बगौर देखा था। अनाया इसकी तरफ मुतवज्जह नहीं थी, वो डिश वॉशर में बर्तन रख रही थी। तुम्हें पता है एरिक ने तुम्हारे पापा को खत लिखा है? अमामा ने कुरेदने वाले अंदाज में यकदम अनाया से कहा। वो कुछ गिलास रखते हुए चौंकी और माँ को देखने लगी। फिर इसने कहा, इसने पापा से भी यही बात की होगी। वो बहुत अपसेट है, चंद दिनों से कर रहा है कि या तो इसको भी साथ ले जाओ या फिर रिक्वेस्ट। हर रोज मुझे खुद भी यही रिक्वेस्ट कर रहा है। उसकी बेटी ने बेहद सादगी से इससे कहा था। वो अब दोबारा बर्तन रखने में मसरूफ हो गई थी। अमामा अपने जिस खदशे की तस्दीक करना चाह रही थी, इसकी तस्दीक ना होने पर इसने जैसे शुक्र किया था। वो खत के मंदरजात से वाकिफ नहीं थी। मुझे एरिक पर तरस आता है, अनाया ने डिश वॉशर बंद करते हुए माँ से कहा। अमामा ने किचन कैबिनेट बंद करते हुए एक बार फिर इसे देखा। अनाया के चेहरे पर हमदर्दी थी और हमदर्दी के अलावा और कोई तासुर नहीं था, और इस वक्त अमामा को इस हमदर्दी से भी डर लगा था। क्यों तरस आता है? अमामा ने कहा। क्योंकि वो बहुत अकेला है, अनाया ने जवाबन कहा। खैर ऐसी कोई बात नहीं, इसकी फैमिली है, मम्मी, बहन, भाई और क्लोज दोस्त भी। फिर अकेला कैसे है? लेकिन मम्मी, वो इन सब से इतना क्लोज नहीं है जिस तरह से वो हमसे है। अनाया ने इसे डिफेंड किया। अनाया, इसका कसूर है, वो घर में सबसे बड़ा है, इसे अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। अमामा ने जिसे एरिक को कसूरवार ठहराने की कोशिश की। अगर जिब्रील अपनी फैमिली के बजाय किसी दूसरी की फैमिली के साथ इस तरह होकर ये महसूस करने लगे कि वो अकेला है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अमामा ने जैसे इसे एक बेहद मुश्किल इक्वेशन दी थी। अनाया कुछ देर के लिए वाकई ही बोल नहीं पाई। फिर इसने बेहद मध्यम आवाज में कहा, मम्मी, हर एक जिब्रील की तरह खुशकिस्मत नहीं होता। अमामा को इसका जुमला अजीब तरह से चुभा। इसकी बेटी ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी दूसरे शख्स के बारे में अपने माँ की राय से इत्तेफाक ना करते हुए जिसे इसे डिफेंड करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश ने अमामा को परेशान किया था। एरिक छोटा बच्चा नहीं है अनाया, अमामा ने कुछ तेज आवाज में इससे कहा। वो 13 साल का है, इसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। अनाया ने हैरान होकर माँ का चेहरा देखा। ना इसे और ना ही खुद अमामा को समझ आई थी कि जुमले का मतलब क्या था। वाहिद चीज जो अनाया अखज़ कर पाई थी वो ये थी कि इसकी माँ को इस वक्त एरिक का तस्करा और इसकी जबान से तस्करा अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये भी हैरान कुन बात थी क्योंकि एरिक का जिक्र इनके घर में अक्सर होता था। मम्मी, क्या मैं एरिक का खत पढ़ सकती हूँ? गैर मुतवक्का तौर पर अनाया ने फरमाइश की थी, जबकि अमामा समझ रही थी वो गुफ्तगू का मौजू बदल देगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अमामा ने हातमी अंदाज में कहा, और अब इस मौजू को शुरू कर देने पर पछता रही थी। हुमैन ने पढ़ा होगा वो खत। एरिक इसे एक खत पढ़ा रहा था, मेरा ख्याल है ये। हाँ, मैंने एरिक और इसे बैठे कोई कागज पढ़ते देखा था। मेरा ख्याल है ये खत ही होगा, क्योंकि एरिक हर काम इससे पूछ कर रहा है आजकल। अनाया ने अपने ही अंदाजे के बारे में खुद ही बताया। बट आई एम नॉट श्योर, बेयकीनी का इजहार किया। हर शैतानी काम के पीछे हुमैन ही क्यों निकलता है आखिर? अमामा ने दांत पीसते हुए सोचा था। वो इस वक्त ये भी भूल गई थी कि इसे किचन में क्या काम करना था। इसे अब यकीन था कि एरिक को इस खत का मशवरा देने वाला हुमैन ही हो सकता है, और अमामा का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो खत एरिक ने लिखा था और हुमैन ने इसे एडिट किया था। इसने इस खत के ड्राफ्ट में कुछ जज्बाती जुमलों का इजाफा किया था और कुछ हद से ज्यादा जज्बाती जुमलों को हज़फ किया था। एरिक इसके पास एक खत का ड्राफ्ट लाया था, ये बताए बगैर कि वो खत सलार सिकंदर के नाम लिखना चाहता था। इसने हुमैन से मदद की दरख्वास्त की थी और वो एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था और इसके बाप को खत लिखना चाहता था। हुमैन ने जवाब में इसे मुबारकबाद दी थी। एरिक ने इससे कहा था कि क्योंकि वो मुस्लिम कल्चर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए इसे इसकी मदद दरकार थी, और हुमैन ने वो मदद फराहम की थी। मोहम्मद हुमैन सिकंदर ने मुसरित सेंसिटिव को इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया था, और एरिक ने न सिर्फ इसका शुक्रिया अदा किया बल्कि रेड ड्राफ्ट के लेटर को। बल्कि जब सलार सिकंदर ने इससे मुलाकात की दावत दी तो इसने हुमैन को इसकी कोई हद नहीं थी इस एक्साइटमेंट के बारे में भी मुतला किया था। हुमैन का दिल तो ये चाह रहा था कि एरिक का ये राज सबसे कह दे, लेकिन इसने एरिक से वादा किया था कि वो इस राज को किसी से भी नहीं कहेगा। अनाया ने एक आध दिन इस गठजोड़ के बारे में इससे कुरेदने की कोशिश की थी। इसने सिर्फ ये कहा था कि वो एक जरूरी लेटर लिखने में एरिक की मदद कर रहा था, लेकिन खत किसके नाम था और इसमें क्या लिखा जा रहा था, अनाया के कुरेदने पर भी हुमैन ने ये राज नहीं उगला था। मुझे पता है एरिक ने वो खत किस लिए लिखवाया था। अनाया अमामा के पास से होकर सीधा हुमैन के पास पहुंची थी। वो इस वक्त अपने कमरे में कंप्यूटर पर कोई गेम खेलने में मसरूफ था, और अनाया इस तबसे पर इसने बेइख्तियार दांत पीसते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था वो कोई राज नहीं रख सकता।
मुझे कह रहा था किसी को ना बताऊं, खास तौर पर तुम्हें, और अब तुम्हें बता दिया इसने। हुमैन खफा था। इसका अंदाजा यही था कि ये राज एरिक ने खुद ही फाश किया होगा। एरिक ने मुझे नहीं बताया, मुझे तो मम्मी ने बताया। इस बार हुमैन गेम खेलना भूल गया था। इसके हीरो ने इसके सामने ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और वो इसे समंदर में गिरते नहीं बचा पाया। कुछ वैसा ही हाल इसने अपना भी इस वक्त महसूस किया था। एक दिन पहले इसके और मम्मी के ताल्लुकात में पाकिस्तान जाने के फैसले ने फिर से गर्मजोशी पैदा की थी, और अब ये इंकशाफ। मम्मी ने क्या बताया है? हुमैन के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे इसने कोई भूत देखा था। मम्मी ने बताया कि एरिक ने पापा को कोई खत लिखा है, और मुझे फौरन ख्याल आया कि जो खत तुम पढ़ रहे थे वो वही हो सकता है। अनाया रवानी में बता रही थी, और हुमैन के दिमाग में जैसे धमाके हो रहे थे। काटो तो बदन में लहू ना हो, इस वक्त इस पर मज़दाक साबित होता। ऐसी कौन सी मुस्लिम गर्लफ्रेंड बन गई थी यकदम एरिक की, जिसके बाप को खत लिखवाने के लिए इसकी जरूरत पड़नी थी, जबकि 24 घंटे वो अगर किसी के घर भी आता था तो वो खुद इनके ही घर का था। फिर इसकी अकल में ये बात क्यों नहीं आई? या वो इतना ही अंधा हो गया था कि इसने ये सोच लिया कि एरिक कभी अनाया के हवाले से तो कुछ नहीं सोच सकता। हुमैन अपने आप को मलामत कर रहा था, और मलामत बड़ा छोटा लफ्ज था इन अल्फाज के लिए जो इस वक्त अपने और एरिक के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम बोल क्यों नहीं रहे? अनाया की इससे खामोशी खटकी थी। मैंने सोचा है मैं अब कम बोलूं और ज्यादा सोचूंगा। हुमैन ने अपना गला साफ करते हुए इस तक वो खबर पहुंचाई जिस पर उसे यकीन नहीं आया। कीप ड्रीमिंग, इसने अपने छोटे भाई को टीज करने वाले अंदाज में कहा। मम्मी ने तुम्हें बताया इस खत में क्या है? हुमैन इस वक्त गले गले इस दलदल में फंसा हुआ था। नहीं, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि ये खत हुमैन की मदद से लिखा गया होगा। मैं इससे पूछ लूंगी इस खत में क्या लिखा था। एरिक ने पापा को अनाया अब इससे पूछ रही थी। हुमैन बेख्तियार कर रहा था। वो मुसीबत को दावत नहीं देता था, मुसीबत खुद आकर इसके गले का हार बन जाती थी। एरिक को सलाह ने खुद दरवाजे पर रिसीव किया था। वो वीकेंड था और इस वक्त इनके बच्चे साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे। घर में सिर्फ अमामा और सलार थे। ये आपके लिए। एरिक ने अपने एक हाथ में पकड़े चंद फूल जो गुलदस्ते की शक्ल में बने हुए थे इसकी तरफ बढ़ा दिए। सलार ने एक नजर इन फूलों पर डाली। इसे यकीन था कि इसमें कुछ खुद इसी लोनके से लिए गए थे, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज किया था। इसकी जरूरत नहीं थी। इसने इसे अंदर आते हुए शुक्रिया के बाद कहा। एरिक फॉर्मल मीटिंग के लिए आया था और आज पहली बार सलार ने इसे फॉर्मल गेटअप में देखा था। बैठो, सलार ने इसे वहीं लाउंज में ही बैठने के लिए कहा। एरिक बैठ गया। सलार इसके बिलमुकाबिल बैठा और इसके बाद इसने टेबल पर पड़ा एक लिफाफा दोबारा खोलते हुए देख रहा था। एरिक बेख्तियार नर्वस हुआ था। खत लिख भेजना और बात थी, और अब इसी खत को अपने सामने इस बंदे के हाथ में देखना जिसके नाम वो लिखा गया था दूसरी। सलार ने 1-1.5 मिनट लिया, फिर इस खत को खत्म करते हुए एरिक को देखा। एरिक ने नजरें हटा ली। क्या अनाया को पता है तुम्हारी इस ख्वाहिश के बारे में? सलार ने बेहद डायरेक्ट सवाल किया था। मैंने मुझसे सलाह से वादा किया था कि मैं अनाया से कभी ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने आपको खत लिखा, एरिक ने जवाबन कहा। सलार ने सर हिलाया और फिर कहा, और ये वाहिद वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हारा खत फाड़ कर नहीं फेंका। तुम वादा करके निभा सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। सलार संजीदा था और उसने बेहद बेधड़क अंदाज में कहा था। एरिक की तारीफ की थी, लेकिन इसके लहजे और चेहरे की संजीदगी ने एरिक को खाइफ किया था। तो तुम अनाया से शादी करना चाहते हो? सलार ने इस खत को अब वापस मेज पर रख दिया था और इसकी नजरें एरिक पर जमी हुई थी। एरिक ने सर हिलाया। पहली बात, ये एरिक के सिर्फ शादी की नियत करके मजहब बदल लेना बहुत छोटी बात है। हमारा दीन इसकी इजाजत देता है। इसे बहुत पसंद नहीं करता। सलार ने कहा, तुम्हारे पास मुसलमान होने के लिए मेरी बेटी से शादी के अलावा कोई और वजह है? सलाह ने इसी अंदाज में इससे अगला सवाल किया था। एरिक खामोश बैठा इसका चेहरा देखता रहा। मजहब की तब्दीली एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये नफ्स की किसी ख्वाहिश की वजह से नहीं होना चाहिए, अक्ल का फैसला होना चाहिए। क्या तुम्हारी अक्ल तुम्हें ये कहती है कि तुम्हें मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारनी चाहिए? इसने एरिक से पूछा। वो गड़बड़ाया। मैंने इस पर सोचा नहीं। मेरा भी यही अंदाजा है कि तुमने इस पर सोचा नहीं। इसे बेहतर है पहले तुम इस पर अच्छी तरह सोचो, सलाह ने जवाबन इससे कहा। मैं कल फिर आऊंगा, एरिक ने इससे कहा। नहीं, तुम अभी कुछ साल इस पर सोचो कि तुम्हें मुसलमान क्यों बनना है, और इसकी वजह अनाया नहीं होनी चाहिए, सलाह ने इससे कहा। मैं वैसे भी अनाया की शादी सिर्फ मुसलमान से नहीं करूंगा, मुसलमान होने के साथ उसे एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, इसने कहा। एरिक के चेहरे पर एकदम मायूसी उभरी। यानी आप मेरा प्रपोजल कबूल नहीं कर रहे? इसने सलाह से कहा।
فوری طور پر نہیں، لیکن تقریباً 10 سال بعد جب مجھے عنایا کی شادی کروں گا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان 10 سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو۔ سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا، کین یو گائیڈ می ٹو دس؟ ایرک نے یکدم کہا۔ سالار چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ایرک نے اس سے بالکل ڈائریکٹ مدد مانگ لی تھی۔ ہاں، ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک۔ ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے، سالار نے بالآخر جواباً کہا۔ 13 سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے اور ایک فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم اس فیملی کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے؟ مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں پیشن داخل ہونا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھو اور اس پر عمل کرو؟ کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا؟ سالار اب اس پر جرح کر رہا تھا۔ میں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں، میں پہلے ہی سب چیزیں جانتا ہوں اور میں عمل کر سکتا ہوں۔ ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ 10 سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ اگر 23 سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایا سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایا سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں تم کو ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آنا چاہیے۔ سالار نے ایک اور مکمل بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ بہت لمبی مدت ہے، ایرک نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں، لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے اور تمہاری سنسیئرٹی کو ظاہر کریں گے، تمہارے بچکانہ پن کو نہیں، سالار نے جواباً اس سے کہا۔ وہ سالار کو دیکھتا رہا بے حد خاموشی سے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، پھر اس نے کہا، مسٹر سالار سکندر، آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے۔ اس نے بے حد بلنٹ ہو کر سالار سے کہا، اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے 10 سال کا انتظار کرنا کہتے، لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا۔ میز پر بڑا ایک قلم اٹھایا، وہاں پڑے سادے کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا، اپنے دستخط کیے اور تاریخ ڈالی، پھر قلم بند کر کے واپس میز پر اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا۔ میں عنایا سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا، آپ کی بیوی کی نرم سے جو آپ نے اپنے بچوں کو ویلیوز، مزاجی اور آپ کی اصول پسندی سے ان کو دی ہیں، اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آ کر اپنا آپ بھول جاتا تھا۔ وہ مذہب یقیناً اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں جیسے ہیں۔ میں عنایا کے ساتھ ایک ایسی ہی گھر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی اور اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ میں جانتا تھا آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا کیونکہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے، جو اب میرا مذہب بھی ہوگا۔ وہ کسی 13 سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے اور وہ اتنے جذباتیت سے بھرپور بھی نہیں تھے جیسے اس کا خط تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ان جملوں نے صرف سالار کو نہیں، امامہ کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ چند لمحے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے اور ایرک اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے امامہ کو بھی دیکھا اور اسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھ آئی تھی۔ اس نے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل پر پڑا وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا جس پر ایرک دستخط کر کے گیا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک نام تھا، عبداللہ، اور اس کے نیچے دستخط اور تاریخ۔ امامہ نے سالار کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ امامہ کے ہاتھ سے لیا، اسے فولڈ کر کے اس لفافے میں ڈالا جس میں ایرک کا خط تھا، اور پھر اسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دوبارہ آئے گا اور اگر میں نہ بھی ہوا اور یہ اپنے وعدے پر پورا اترا تو تم بھی اس وعدے پر پورا اترنا جو میں نے اس سے کیا ہے۔ امامہ نے کپکپاتی آنکھوں اور انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔ عائشہ عابدین کو زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا تو وہ جبریل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بڑی بہن نساء عابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا کچھ سنا رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بنا سکتی تھی۔ نساء جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اس سے شدید متاثر اور مرعوب، اس کے باوجود کہ وہ ایک شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والی اسٹوڈنٹ تھی۔ عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر جبریل کے کمنٹس پڑھتی۔ عائشہ بھی کئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتی رہتی تھی جو اس کی بہن کی وال پر تبصرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی، لیکن جبریل سکندر کے اپ ڈیٹس
और निसा के कमेंट्स का मुकाबला वहाँ कोई भी नहीं कर पाता था। इसके वेट के आबदीन की वॉल पर बिल्कुल अलग चमकते नजर आते थे, और जब वो किसी वजह से वहाँ तबसरा नहीं कर पाता तो कई बार इसके क्लास फेलोज के दफ्तरों की लंबी मिस कतार के बीच में जिब्रील की खामोशी और गैर हाजिरी को बुरी तरह महसूस करने वालों में सरफहरिस्त आयशा आबदीन थी, जिसे मिस किया जाता और इनके पढ़ते पढ़ते बेहद मिस करती थी। खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि वो जिब्रील के एडिक्टिव हो गई थी। निसा के साथ जिब्रील के मुख्तलिफ फंक्शंस सरगर्मियों में अक्सर बहुत सारे ग्रुप फोटोज नजर आती थी, लेकिन आयशा को हमेशा जिब्रील की फैमिली के बारे में थी। वो सलाह सिकंदर से वाकिफ थी क्योंकि इसका तारुफ क्यूरियोसिटी में निसा ने ही करवाया था, लेकिन इसकी फैमिली के बाकी अफराद को देखने का उसे बेहद इश्तियाक था। और ये इश्तियाक इसे बार बार जिब्रील की फ्रेंड लिस्ट में न होने के बावजूद इसकी तस्वीरों को खोजने के लिए मजबूर करता था, जहां इसे रसाई हासिल थी। कुछ तस्वीरें वो देख सकती थी, कुछ वो नहीं देख सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में जिन तक इसे रसाई हासिल थी, इनमें जिब्रील की फैमिली की तस्वीर नहीं थी। जिब्रील भी गायबाना तौर पर आयशा से वाकिफ था, और इस तारुफ की वजह फेसबुक पर होने वाले तबसरों में उनका हिस्सा लेना, स्टेटस अपडेट्स, बुक पर निसा क्या था, और निसा ने अपनी वॉल पर जिब्रील को अपनी बहन से मुतारिफ करवाया था। वो आईडी खोजने गायबाना तारुफ में इतना ही रहा था क्योंकि जिब्रील ने कभी इसकी कोशिश नहीं की, और आयशा की अपनी वॉल पर तस्वीरें बहुत कम थी। इसने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत ज्यादा कम लोग ऐड किए हुए थे। निसा के बरक्स इसका हल्का अहबाब बेहद महदूद था, और इसकी कोशिश भी यही रहती कि वो इसे ही महदूद तक रखे। आयशा को जिब्रील के बारे में हमेशा ये गलतफहमी रही कि वो निसा में इंटरेस्टेड था, और इस तासुर की बुनियादी वजह खुद निसा थी, जो इस बात को एडमिट करने में कभी तामुल नहीं करती थी कि उम्र में इससे छोटा होने के बावजूद वो जिब्रील को पसंद करती थी। एक दोस्त के तौर पर जिब्रील की इससे बेतकल्लुफी थी, वैसे ही बेतकल्लुफी जैसी अगर अपनी दूसरी क्लास फेलोज से भी नहीं किया था, क्योंकि निशा ने कभी इस बेतकल्लुफी को मिस इंटरप्रेट नहीं किया था। जिब्रील लड़कियों के साथ बेतकल्लुफी और दोस्ती में भी बहुत सारे हदूद व कयूद रखता था और बेहद मोहतात था। निशा उम्र में इससे 4 साल बड़ी थी। वो दोनों से 15-16 साल का नहीं था लगता था, और मेच्योरिटी अपने कद काठ और निशा से ये भी जानती थी। यूनिवर्सिटी में इतना वक्त गुजार लेने के बावजूद जिब्रील अभी तक गर्लफ्रेंड नामी किसी भी चीज के बगैर था, तो ऐसे हालात में सलार सिकंदर को इस लाइक औलाद पर किस्मत आजमाने के लिए कोई भी तैयार हो सकता था, सिर्फ निसा ही नहीं। आयशा अब्दीन इन सब चीजों से वाकिफ थी। निसा की जिब्रील में दिलचस्पी इनके हवाले से फ्यूचर घर में एक ओपन सीक्रेट था, लेकिन इन दोनों की थी ही किसी और को निसा जहानत और काबिलियत से एश्योरेंस तो उनको कोई भी मुतासिर होने वालों में से थी, और जिब्रील सिकंदर वो पहला शख्स नहीं था जिसने इसे मुतासिर किया था, मगर फिलहाल ये जिब्रील ही था जिसका जिक्र वो करती रहती थी। आयशा आबदीन एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह ये सब कुछ देखती आ रही थी, और जब तक वो जिब्रील से मिली थी वो इससे पहले ही बहुत मुतासिर थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।